Students, today we are going to discuss concept of organization change and development. I hope you all are listen it carefully and be attentively. Okay, let us start. What is organization change and development? Organization change and development is a very wide term which is mainly used for the which is mainly used in the organization for the better upgrade and technology environment. Now, before going to the discuss the OCD concept, organization change and development, we have first of all clear what is organization change. Now, let us start. What is organization change? Organization change. देखिए even organization change is the combination of two different words. First one is organization and second one is change. First of all, we have clear what is organization. Organization means a group of person working together in an organization for achieving their goal oriented process. That is the organization. Now it change. Change means something new. Update, yeah, upgrade yourself as well as their organization for the better development. That is change. Now, what is organization change? Organization change is the changing pattern of production, finance, human resource, communication are analyzed and managed to bring success in the organization. It means for the better development, for the effectiveness as per the change in the technological world, each and every organization need to change their pattern, which may be in the form of the production department, finance department, human resource department like as recruitment, selection, training process, and as well as communication process, right? Now it means it is the change of attitudes, interest of employees, technology, and environmental change related to an organization as well as change in rules and regulation which are affecting the organization. Means हम ऑर्गेनाइजेशन में चेंज क्यों करने जा रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन में चेंज का मतलब, बदलाव का मतलब होता क्या है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो अभी करंट टेक्नोलॉजी है, जो हमारी करंट अभी जो प्रोडक्शन है, जो हमारे करंट स्किल्स हैं, जो करंट एटीट्यूड्स हैं, उसमें हमें बदलाव करना है, चेंजमेंट लाना है. वो किस लिए? एज पर द चेंजिंग एनवायरनमेंट. जैसे वातावरण में माहौल कन्वर्ट होता है, उसके साथ साथ जैसे जैसे कंज्यूमर्स, कस्टमर्स के नीड्स, इंटरेस्ट, प्रीफरेंस चेंज होते हैं, वैसे वैसे ऑर्गेनाइजेशन में बदलाव करने की हमें आवश्यकता होती है फॉर द बेटर फीडबैक और बेटर रिजल्ट. दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन चेंज. Second concept is this: factors affecting organization change. Which are the essential factors which are responsible for the change in the organization? First one is external factor and second one is internal factor. Now let us start external factor. External factor, एज द नेम, देखिए नाम से क्लियर हो रहा है, एक्सटर्नल बाहरी, बाहर के, जिसमें कहीं ना कहीं क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल नहीं होता है. इंटरनल क्या होता है? विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. इन दिस वी कैन चेंज एज पर द ऑर्गेनाइजेशन नीड रिक्वायरमेंट. तो एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक एज टेक्नोलॉजी चेंज. अगर मार्केट में टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, फॉर एग्जांपल आप किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे थे, आपका मार्केट में प्रोडक्ट अच्छे से खूब सेल आउट हो रहा था, लेकिन क्या हुआ, मार्केट में कंपटीटर आ गया. एट दैट केस क्या होगा कि हमें भी अपनी टेक्नोलॉजी में बदलाव करना पड़ेगा, चेंजमेंट करना पड़ेगा, अगर हमें मार्केट में रुके रहना है. तो अगर हमने टेक्नोलॉजी में बदलाव नहीं किया तो कहीं कहीं क्या होगा कि हम डंपिंग सिचुएशन में पहुंच जाएंगे, डाउन साइजिंग में पहुंच जाएंगे, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू द सडन पॉइंट. ओके, तो वी नीड टेक्नोलॉजी चेंज. सेकेंड इज चेंज इन मार्केटिंग कंडीशन एज पर द नीड एंड इंटरेस्ट of the consumers. We have need to modify our organization.
फॉर एग्जांपल मान लीजिए जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे थे, कंपटीटर मार्केट में आया और उन्होंने हमसे भी बेटर क्वालिटी में प्रोडक्ट दे दिया और चीप रेट में जो है कहीं कहीं मार्केट में अवेलेबल करवा दिया, तो सीधी सी बात है कि हमारा प्रोडक्ट अब सेल आउट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में लोगों का टेस्ट जो है वो चेंज हो चुका है। तो हमें भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज करने के लिए, मार्केटिंग कंडीशन में चेंज करने के लिए हमें बदलाव ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट इज सोशल चेंज। सोशल, देखिए, एज पर द इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंट टेस्ट, नीड्स, डिमांड्स सबकी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो जिससे क्या होता है कि एक सोशल एनवायरनमेंट में बदलाव हो जाता है और हमें भी उस बदलाव के अनुसार ही चलना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, रूरल एक ग्रामीण और एक अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। देखिए, शहरीकरण एक डेवलप्ड टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट को हम कह सकते हैं, लेकिन एक रूरल एरिया में जो भी अभी भी अंडर डेवलप्ड टेक्नोलॉजी चल रही है और जो भी पुरानी रीति रिवाज कस्टम्स चल रही हैं उसी के अनुसार ये काम सब कुछ चल रहा है, तो वहाँ तो चल जाएगा। लेकिन शहरीकरण होने के कारण क्या होगा, अगर हमें मार्केट में रुके रहना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मार्केट में हमें अपने प्रोडक्ट में चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे अर्बनाइजेशन आ रहा है, जैसे जैसे एजुकेशंस में बदलाव आ रहे हैं, तो हमें भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बदलाव करना पड़ता है, क्योंकि आज लोग बहुत ही अवेयर हैं, जागरूक हैं रिगार्डिंग एनी टाइप ऑफ द प्रोडक्ट, देयर टेस्ट, देयर डिमांड, देयर नीड्स। ठीक है, तो उसके अनुसार ही हमें क्या करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा। लास्ट वन इज पॉइंट इज पॉलिटिकल चेंज, राजनीतिक बदलाव। राजनीतिक बदलाव में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट्स के रूल रेगुलेशंस हैं, नॉर्म्स हैं, मेथड्स हैं, स्ट्रेटेजीज हैं, उनमें गवर्नमेंट्स जो है बदलाव करती रहती है। ठीक है, तो उनके उनके जो उनमें उन्होंने जो बदलाव, जो भी रूल रेगुलेशन लागू किए हैं, उन्हें हमें फॉलो करना ही करना पड़ेगा। तो ये हमारे 4 एक्सटर्नल फैक्टर है जिसके ऊपर हमारा कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में हमें समाज को देखते हुए, हमें शहरीकरण को देखते हुए, लोगों की एजुकेशन को देखते हुए और हमें मार्केट में टेक्नोलॉजी को देखते हुए, मार्केट में कंडीशन को देखते हुए हमें क्या करना पड़ता है, बदलाव करना पड़ता है। तो ये तो थे एक्सटर्नल फैक्टर। सेकेंड वन है आपका इंटरनल फैक्टर। इंटरनल नाम से क्लियर हो रहा है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जिसके ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें मेनली 2 फैक्टर है। फर्स्ट वन इज चेंज इन मैनेजीरियल पर्सोनल। देखिए, मैनेजीरियल पर्सोनल, मैनेजीरियल वर्ड्स इज डराइव्ड फ्रॉम द मैनेजमेंट, और पर्सोनल एक होता है पर्सनल और एक होता है पर्सोनल। पर्सनल सिंगल इंडिविजुअल के लिए यूज़ होता है, पर्सोनल ग्रुप ऑफ पर्सन्स, जहाँ पर बहुत सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम पर्सोनल मैनेजमेंट कह देते हैं, उसको हम पर्सोनल कह देते हैं। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसको पर्सोनल मैनेजमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स के, डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी के, डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट, लोग्स वगैरह, पीपल्स वगैरह होते हैं, और इसलिए उसको क्या बोलते थे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो पॉइंट हमारा चेंज इन मैनेजरियल पर्सोनल। देखिए, मार्केट में बदलाव आ गया, हमें भी अपनी जो हमारे स्किल्स हैं ऑलरेडी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, जिस स्किल्स के लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रहें उसमें हमें बदलाव करना पड़ेगा। फॉर बाई रिप्लेस ओल्ड टू न्यू, मतलब जो पुराने कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, अगर उनमें वो करंट टेक्नोलॉजी को अडोप्ट कर पाते हैं, ट्रेनिंग ले पाते हैं, लर्न कर पाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज़ हमें क्या करना पड़ेगा, उनको रिप्लेस करना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजी के न्यू फ्रेशर बंदे जो हमें हायर करने होंगे। सेकंड थिंग इज डेफिशिएंसी इन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिसेस। देखिए, कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिसेस ऐसी होती हैं जो हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रहा, ज़्यादा जो है विकास नहीं हो पा रहा है। तो हम क्या करेंगे उस केस में, इम्प्रूविंग कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन इन बिटवीन द एम्प्लॉयज़। जो हमारे वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं उनके अंदर हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन जो है उनमें लाएंगे, और जिससे क्या होगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो वो बोलते हैं ना कि जैसे चलता आ रहा है, चला आ रहा है, चला आ रहा है, नहीं, हमें कुछ नया करना है, न्यू अपडेट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय के साथ कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन के साथ में चलना होगा, और जिससे हम बदलाव कर सकते हैं।
अब बात आती है इसके अप्रोचेस टू ऑर्गेनाइजेशन चेंज कि कौन कौन से जो स्ट्रेटेजीज वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम ऑर्गेनाइजेशन में बदलाव इफेक्टिवली कर सकते हैं। फर्स्ट वन है स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चरल नाम से क्लियर हो रहा है कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो ढांचा है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको हमें बदलाव करके हम बदलाव करके ऑर्गेनाइजेशन में हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए पुरानी टेक्नोलॉजी की मशीनरी वगैरह यूज़ कर रहे थे आप पहले, या फिर जैसे जो बिल्डिंग है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका, ठीक है, वो एक अट्रैक्टिव नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न टेक्नोलॉजी बदलाव करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। सेकेंड वन इज टेक्नोलॉजी अप्रोच। टेक्नोलॉजी नाम से क्लियर हो रहा है, जैसे जैसे मार्केट में नई नई टेक्नोलॉजी आती है उसके अनुसार हमें मशीनरीज इम्प्लीमेंट करनी पड़ती हैं, वैसे स्किल्स के एम्प्लॉयज़ हमें हायर करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में टेक्नोलॉजी आ गई है। अगर हम उस टेक्नोलॉजी को फुलफिल कर पाएंगे, अपडेट टेक्नोलॉजी को, तो कहीं ना कहीं हम मार्केट में आगे भी फ्यूचर में सर्वाइव कर पाएंगे। नेक्स्ट वन है टास्क अप्रोच। टास्क अप्रोच मीन्स आप अपनी जिसकी जो ड्यूटीज़ है, जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अथॉरिटीज़ है, उनको अगर प्रॉपरली डिसिप्लिन सेंस में बी पंचुअल होके बी टाइमली अगर हम ओबे करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में बदलाव को सक्सेसन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है पीपल अप्रोच। देखिए नाम से क्लियर और पीपल्स मीन्स हेयर दोज एम्प्लॉयज आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। पीपल्स मीन्स जो भी कैटेगरीज के लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रह रहे हैं, एससी के हैं, एसटी के हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स के हैं, कुछ प्रोडक्शन के, कुछ मार्केटिंग के हैं, कुछ फाइनेंशियल के लोग हैं, तो हमें उनको टारगेट बना के चलना होगा। देखिए अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन में फर्दर डेवलपमेंट करना है, फर्दर चेंजमेंट करना है, तो ठीक उनको कोऑपरेट करना पड़ेगा, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके हम उनको साथ लेके चलना होगा। तो ये कुछ एक अप्रोचेस थे जिससे हम ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवनेस ला सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसमें ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन चेंज हमारा क्लियर हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट क्या होता है? इट इज द लॉन्ग प्रोसेस विच अटेम्प्ट टू चेंज द बिहेवियर, एटीट्यूड्स एंड परफॉर्मेंस। देखिए जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन चेंज है वो ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं होता है। हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में बदलाव करते हैं, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आई मार्केट में, हमने मशीनरी सेटअप की, न्यू स्किल्स के एम्प्लॉयज़ हायर किए, बस एक शॉर्ट प्रोसेस। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट क्या है, एक लॉन्ग प्रोसेस रहता है, वो चलता रहता है, डेवलपमेंट चलता रहता है, चलता रहता है और इफेक्टिवली अपने गोल को अचीव करता रहता है। तो इस मीनिंग में यही कहना चाह रहा है, इट इज़ द लॉन्ग प्रोसेस विच अटेम्प्ट टू चेंज द बिहेवियरल एटीट्यूड्स एंड परफॉर्मेंस। जो हमारी ऑलरेडी आज हम परफॉर्मेंस ले रहे हैं, कल हम टारगेट बना के चलेंगे इससे भी बेटर हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन डेली के 10 यूनिट जो है प्रोडक्शन की करती है, तो वो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में बदलाव चाह रहे हैं, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में अपडेट चाह रहे हैं, अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन को बेटर तरीके से सर्वाइव करना है, तो हम क्या करेंगे कि लोगों की डिमांड के अनुसार, जैसे मान लीजिए डिमांड ज़्यादा आ रही है लेकिन हम प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, एट दैट केस हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मशीनरी सेटअप करेंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के स्किल्स पर्सन एम्प्लॉयज़ जो है वो हायर करेंगे, और उसके बाद में हम आज हमने 10 यूनिट की, कल हमने 12, कल हम परसों हमने मान लीजिए नेक्स्ट डे हमने 15 यूनिट प्रोडक्शन में, उससे नेक्स्ट डे हमने 20 की। तो ये क्या है, डेवलपमेंट है। और डेवलपमेंट क्या है कि लॉन्ग प्रोसेस है। अब बात करते हैं इसकी प्रोसेस और वी कैन से स्टेप्स और स्टेजेस ऑफ ओडी। वो कौन कौन सी स्टेप्स हैं, वो कौन कौन से जो है स्टेजेस हैं जिनके ज़रिए हम ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। फर्स्ट वन है और प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड डायग्नोज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव क्लियर व्हाट योर गोल। हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्यों हमें बेटर करना है। हमें पहले अपना टारगेट डिसाइड करना है, हमें अपने जो जो हमारी मेन प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना है, अच्छे से पहचानना है, और फिर हम उसको डायग्नोज करते हैं। तो सेकंड स्टेप प्लानिंग फॉर चेंज। अब हमने डिसाइड कर लिया कि हमें जो है चेंज करना है फर्स्ट स्टेप में, लेकिन अब हम इसके लिए क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, हमें चेंज क्यों करना है और कौन सी स्ट्रेटेजी हम लगाएं, कौन सा अप्रोच, कौन सा मेथड यूज़ करें। थर्ड पॉइंट है इंटरवेंशन इन द सिस्टम। अब हमें जो भी किसी भी प्रकार का जो बदलाव करना है, ठीक है, जो भी नई स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करनी है वो हम इस स्टेप में करेंगे। आफ्टर देन लास्ट स्टेप इज़ द इवेल्युएशन एंड फीडबैक। जब हमने अपने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमें डेली के 20 यूनिट
प्रोडक्शन में लानी है, लेकिन करंट सिचुएशन में हम 10 यूनिट प्रोडक्शन में ला रहे थे। हमने प्लानिंग किया क्या कि हमें स्किल्स पर्सन को चेंज करना है, हमें जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मशीनरी चेंज की करनी है, प्लानिंग फॉर चेंज में आ गया। इंटरवेंशन द सिस्टम, अब हम क्या करेंगे, जिसका जो भी काम है, ड्यूटी वगैरह रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, वो अपनी तरीके से अच्छे से करें वहाँ पर। लास्ट वन इवेल्यूशन एंड फीडबैक, अब हम उसका रिजल्ट देखेंगे कि क्या सच में हमें कुछ फ़ायदा हुआ है, क्या कुछ बेनिफिट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो प्रोसेस को हम दोबारा से रन करेंगे। अदरवाइज़ अगर मान लीजिए आप 20 यूनिट डेली की प्रोडक्शन में ला देते हैं तो कहीं ना कहीं क्या है, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाए हैं। तो ये थे इसके प्रोसेस स्टेप्स। लास्ट है आपका इसमें रोल्स ऑफ ओडी। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का क्या एक अहम रोल होता है। बिल्कुल देखिए, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का बहुत अहम रोल होता है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपमेंट करते जाएंगे तो कहीं क्या है कि ऑल अराउंड डेवलपमेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होगा। तो कुछ एक पॉइंट्स हम इसमें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन है टू प्लेस ह्यूमनिस्टिक वैल्यू। मानवता की जो वैल्यू है उससे हमें क्लियर होगा, वो तभी हो पाएगा जब हम ईच एंड एवरी एम्प्लॉयज़ को एज पर देयर स्किल और नॉलेज एक्सपीरियंस उसको ड्यूटीज असाइन कर रहे हैं, तो उससे हमें पता चलेगा इस इंडिविजुअल की क्या वैल्यू है, ये इस इंडिविजुअल का क्या काम है, क्या गोल है। सेकेंड वन, टू इंक्रीज द लेवल ऑफ ट्रस्ट एंड म्यूचुअल इमोशनल सपोर्ट। भरोसा तभी जो है भरोसा लोगों में कायम होगा जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ बराबर कर रहे हैं, और तभी लोग आपस में म्यूचुअली इमोशनल टच हो पाएंगे एक दूसरे से। नेक्स्ट पॉइंट आपका टू ट्रेट्स ईच ह्यूमन वेल बीइंग टुवर्ड्स हिज वर्क एंड हिज लाइफ। बिल्कुल, जिसकी जो ड्यूटी है, जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसकी जो अथॉरिटीज़ है, अगर वो अपनी अथॉरिटी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अप्रोप्रिएट मैनर में फुलफिल करेगा तो कहीं क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होगा और इसमें ऑर्गेनाइजेशन का अहम रोल होगा। टू इंक्रीज द लेवल ऑफ एंथुजिज्म एंड पर्सनल सेटिस्फैक्शन। बिल्कुल देखिए, आपकी जो ड्यूटी है, अगर आपने वो ड्यूटी बिल्कुल टाइमली, पंचुअली, होनेस्टली टाइम पे अचीव कर ली तो कहीं की क्या होगा, बोला यार आज का काम हो गया, क्योंकि आज आपकी जो ड्यूटी थी आपने उसको फुलफिल कर लिया है, ठीक है। और इससे क्या होगा, अपने आप में एक सेटिस्फैक्शन हमें मिलेगा। नेक्स्ट है टू इंक्रीज द लेवल ऑफ सेल्फ एंड ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल, हम ये नहीं सीखेंगे, अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ चल रहा है, डेवलपमेंट चल रहा है, तो हम कभी भी सेल्फिशनेस नहीं आएगी हमारे अंदर। और इससे कहीं क्या होगा कि हम, हमारा काम नहीं, ये मेरा काम नहीं, हमारा काम है, हम एक ग्रुप में होके अपनी जिम्मेवारियों को निभाएंगे और अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट वन है टू इंक्रीज द ओपननेस ऑफ कम्युनिकेशन। बिल्कुल देखिए, कम्युनिकेशन गैप क्रिएट कब होता है, जब कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन का टॉप या मिडल या लोअर लेवल के बीच में किसी न किसी बात को लेके कन्फ्लिक्शन की सिचुएशन आ जाए या फिर स्ट्रेस की सिचुएशन आ जाती है। और उस स्ट्रेस को दूर कब किया जा सकता है, जब बिल्कुल फ्रैंकली बिहेव करेंगे एक दूसरे से। और वो फ्रैंकली बिहेव तभी होंगे जब बिल्कुल ओपननेस माइंड होगा सभी का, ठीक है। बिल्कुल फ्रैंकली, विदाउट सेम, विदाउट हेजिटेट एक दूसरे से जो भी प्रॉब्लम है, इश्यू है, डिस्कस करेंगे, और जिससे क्या होगा, हमारा कम्युनिकेशन सक्सेस हो पाएगा और हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को कहीं ना कहीं क्या है, अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें टू डेवलप नॉर्मेटिव एजुकेशनल प्रोसेस, कि जो शिक्षा की रणनीति है, जो नीति है, उसके अनुसार हम डेवलपमेंट विकास कर पाएंगे एज पर द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। लास्ट वन टू क्रिएट एन एनवायरमेंट ऑफ अथॉरिटी असाइन एज पर देयर स्किल, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। एक पॉइंट दे भी दिया। देखिए, अगर हम अपनी ड्यूटी को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने स्किल और नॉलेज के अनुसार अगर असाइन करेंगे और उसको निभाएंगे तो वी ऑलवेज बी सक्सेस in their goal or we always be achieve their goal oriented process.